Welcome to Ruminating on Life. इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है. दिस इज द 10th एपिसोड ऑन रूमी's टीचिंग्स एंड विजडम. इस एपिसोड में रूमी हमसे कहता है, इग्नोर दोज दैट मेक्स यू फियरफुल एंड सैड, दोज दैट डिग्रेड्स यू टुवर्ड्स डिसीज एंड डेथ. है ना कमाल की बात? इग्नोर दोज दैट मेक्स यू फियरफुल एंड सैड, डिग्रेड्स यू टुवर्ड्स डिसीज एंड डेथ. Ignoring is an art. Ignore those that diffuse you, that demotivates you, that deactivates you. वो सारी चीजें इग्नोर करो जो आपको दुखी करते हैं. One thing that we need to understand is not that everything in our life needs attention. कुछ चीजों का इग्नोर करना एक कला है. क्यों कहते हैं रूमी ऐसा? क्योंकि रूमी कहता है, don't get lost in your pain. Know that your pain one day will become your cure. ये याद रखना जरूरी है कि आपका दुख, आपका दर्द आपका क्योर का कारण होगा, आपका इलाज का कारण होगा. कैसे? Because when you are in pain, you become aware about the situation you are in. And you become aware that you cannot stay here for long because you don't want to be sad for long. दुखी होना गलत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर दुखी रहना गलत है. क्यों? क्योंकि आपने उस हालात को बदलने या उस हालात से निकलने का प्रयास नहीं किया. एक बार कुछ यूं हुआ कि 4 मेंढक जंगल के रास्ते मिले. वो एक नया ठिकाना ढूंढ रहा था. And in the process, in the journey, they met and they became friends. Unfortunately, मौसम बिगड़ गया, बारिश होने लगा, तूफान उठ गया. And in 4 में से 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गया. The 2 frogs fell into a deep pit, and the 2 frogs in the pit tried to come out of this pit by jumping repeatedly. लेकिन हालात, it was very frightening. They used all their might to come out of the pit, but they were repeatedly failing in their attempt. And in this process, one of the frog broke its legs and it died. हालात और खराब हो गया. डरावनी मौसम बदल गया. The 2 frogs out of the pit were trying to convince the frog which was left in the pit to say his last prayers. आखिरी सांस के लिए तैयार हो जाओ, घुटने टेको, परवदिगार को याद करो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है. But the more they were discouraging, the more the frog was motivated to come out of this pit. He repeatedly tried to come out of this pit by repeatedly jumping with all his might. And fortunately, this frog jumped out of the pit. And जैसे ही वो पिट के गड्ढे के बाहर आया, ये जो बचे हुए, जो बाहर बचे हुए 2 मेंढक थे, वो इस मेंढक से पूछा, हाउ डिड यू अचीव दिस? इमीडिएटली दिस frog which jumped out of the pit touched his mouth and ears and said, I am deaf and dumb. मैं गूंगा और बहरा हूं. एनिमेटेडली, इशारों में उनको बताया. इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी गूंगा और बहरा होना बहुत जरूरी है. Become deaf and dumb towards something that makes you sad, something discourages you, something that demotivates you. Ignoring एक कला है. Ignoring का मतलब ये नहीं है कि acknowledge ना करे सिचुएशन को. Ignoring का मतलब क्या है? Acknowledge करे but don't stay there for long. Ignoring का मतलब ये है don't become victim to pain, don't become victim to sadness, don't become victim to unhappiness, don't become victim to depression. What does it mean? Believe that you can come out of it. How? By becoming deaf and dumb.
रूमी आगे कहता है, लेट द वाटर सेटल, यू विल सी द मून एंड स्टार्स मिरर्ड इन योर ओन बीइंग। लेट द वाटर सेटल, माहौल को शांत होने दो, बाहर नहीं भीतर। Then you will see the moon and the stars mirrored in your own being। मतलब क्या है, आप चांद सितारे आपके भीतर झलकता हुआ दिखेंगे, रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेंगे। What does it mean? You will see the opportunity, the possibility to come out of that situation. Isn't it beautiful? रूमी आगे हमसे कहता है, everything about yesterday has gone with yesterday. Today it is needed to say new things. बीता हुआ कल के साथ जो था वो बीता हुआ कल में चला गया, आज हमें नई बातें बोलना है। एक खूबसूरत कहानी, एक संत एक नदी किनारे रहते थे और वो रोज सुबह उठकर नदी को आकर छूकर घंटों भर बात करते थे। This holy sage used to visit the river banks and touch the river and speak to the river animatedly। कई सालों से ये कर रहा था। People were thinking that he is insane, वो पागल है, लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं था उनसे जाकर पूछने के लिए, why are you doing all those things? One day a fisherman mustered courage and went up to this old sage and asked him, can I ask you a question? ये संत मुस्कुराया और उनसे पूछा, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? बोलते, सदियों से ये नदी यहां बह रहा है। Since ages this old river is flowing through my village. What is there so much to speak to this old river? ऐसा क्या है इस पुरानी नदी से बात करने के लिए, वो भी छूकर? मुस्कुराते हुए संत ने कहा, किसने कहा कि मैं इस पुराने नदी से बात करता हूं? हर बार जब मैं एक नदी को छूता हूं, मैं एक नया नदी को छूता हूं। Isn't it interesting? Every time I touch this river, I touch a new river, because the old one कोसों दूर चला गया। Everything about yesterday has gone with yesterday. Today, it is needed to say something new. मैं और आप बिता हुआ दुख में, बिता हुआ कल के जाल में फंस गए, इसलिए खिड़की से, द्वार से आता हुआ नया रोशनी को देखने में समर्थ नहीं हो पाते। हम अकेला महसूस करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। रूमी कहते हैं, किस योरसेल्फ। इफ यू वांट टू होल्ड योर ब्यूटीफुल वन, होल्ड योरसेल्फ टू योरसेल्फ। अगर आपको अपने प्रियतम को या प्रिय व्यक्ति को गले लगना है तो खुद को गले लगो, खुद से, खुद को चूमो। क्यों? रूमी कहता है, यू आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज विद इन यू। फिर आप दुखी कैसे रह सकते हैं? हाउ कैन यू रिमेन इन पेन? हाउ कैन यू रिमेन इन डिप्रेशन? हाउ कैन यू रिमेन इन सैडनेस? आपकी जिंदगी का कण कण, every cell is celebrating because you are alive, and it means you have the possibility to evolve into a better human being. इस लास्ट एपिसोड में बस इतना ही। यह सफर आपके साथ सुंदर, खूबसूरत रहा। थैंक यू फॉर दैट। अगले बार एक नया सीरीज के साथ, एक नया लर्निंग के साथ आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज।